73 میں سے وہ ایک گروہ نجات پانے والا وہ میں ہوں، سبھی کہتے ہیں۔ اب اس کا حل یہ نہیں نہ ہو سکتا کہ میں اپنی جگہ اپنے آپ کو مان کے بیٹھوں، آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو، تیسرا اپنے آپ کو مان کر بیٹھے۔ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ گروہ بندی کہاں سے شروع ہوئی، اور اس گروہ بندی کے زمانے میں کون صحیح سنت پر باقی رہا اور کون اس صحیح راستے پر قائم رہا۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھو، دعویٰ تو میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا۔ اگر دعووں ہی سے بات مان لی جاتی تو پھر نجات پانے والا سارے ہوتے، ہلاک ہونے والا کوئی نہ ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ہوا کہ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ ایمان اور عقیدے میں، عمل میں، سلوک میں صحابہ ایک جماعت کی شکل میں تھے۔ ایک جماعت، صحابہ کی جماعت، مسلمان ایک جماعت، ایک حکمران، ایک خلیفہ کے تحت رہتے تھے۔ ان کے درمیان مسائل میں اختلاف بھی ہوا، لیکن اختلاف کے باوجود گروہ یا فرقے ان کے درمیان نہیں بنے۔ صحابہ کے درمیان کوئی فرقہ ایسا وجود میں نہیں آیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین جیسی لڑائی ہوئی، لیکن اس جنگ کے باوجود بھی صحابہ کے درمیان ایسی گروہ بندی نہیں وجود میں آئی کہ جس کے نتیجے میں صحابہ خود 3، 4، 25 گروہ میں بٹے، ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ ایک جماعت تھے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ وجود میں آیا وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ خوارج کا فرقہ سب سے پہلے وجود میں آیا۔ ان خوارج نے کیا کیا؟ خوارج نے صحابہ کے بارے میں یہ موقف اپنایا کہ صحابہ پورے کے پورے مرتد ہو گئے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے زمانے میں تھے۔ وہ تمام صحابہ ابو بکر و عمر کے دور کے بعد میں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور میں جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ ایک بنیادی اصول خوارج نے بنایا۔ اب یہاں دیکھیں صحابہ اور ان کی جماعت، ایک جماعت یہاں باقی ہیں، اور ان سے ہٹ کر خوارج ایک گروہ نکلتا ہے۔ خوارج ایک گروہ نکلتا ہے۔ یہ گروہ اپنی بدعت اور اپنے اصولوں کی وجہ سے الگ شناخت بناتا ہے۔ یہ پہلا گمراہ فرقہ وجود میں آتا ہے۔ صحابہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، صحابہ کی جماعت باقی ہے جو ہدایت پر ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستے پر چھوڑا تھا۔ خوارج کا طبقہ وجود میں آیا۔ اب ان خوارج کی آگے چل کر کئی اصول انہوں نے اپنائے۔ مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے آج خوارج کے نام پہ فرقہ اور اس کے اصول مستقل موجود ہیں۔ یہ وہ جماعت نہیں ہے، یہ نجات پانے والا گروہ نہیں، یہ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ خود خوارج کے اندر پھر فرقے ہوئے، وہ سارے کے سارے انہی کے تابع رہیں گے۔ ایک خوارج کا فرقہ الگ ہوا۔ اب یہاں اہل سنت، صحابہ، تابعین، یہ جو سیدھے راستے پر تھے، خوارج کے ساتھ ہی، خوارج کے فوری بعد ہی شیعہ وجود میں آئے۔ شیعہ کون تھے؟ انہوں نے یہ کیا کہ آل بیت رسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھر والوں کی محبت کی آڑ لے کر، یاد رکھو اہل سنت والجماعت کے پاس، صحابہ کے پاس آل بیت رسول سے محبت کرنا دین و ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا اور خصوصی محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ان کی محبت کی آڑ لے کر اس قدر غلو کر گئے کہ انہوں نے یہ اصول بنا لیا کہ اگر آپ آل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر صحابہ سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا، صحابہ سے دشمنی کرنی پڑے گی۔ آل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول شیعہ نے ایجاد کیا۔ اب یہ ایک الگ فرقہ وجود میں آ گیا۔ اہل سنت نے یہاں اپنا اصول بتایا۔ قرآن و سنت میں جو آیا وہ یہ کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، دونوں کی محبت کو دین و ایمان سمجھتے ہیں، اور ایک سے محبت کرنے کے لیے دوسرے سے دشمنی اسلام نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اب یہاں دیکھیں شیعہ وجود میں آگے، ایک طرف خوارج ہوئے، دوسری طرف شیعہ ہوئے۔ اب یہاں ابھی بھی وہ سیدھے راستے پر جماعت ابھی باقی ہے۔ آگے چل کر ان شیعوں کے رد عمل میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ ناصبی پیدا ہوئے۔ یہ ناصبی کون ہیں؟ یہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان رسول سے دشمنی رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا خاندان، حضرت حسن و حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کا جو خاندان، ان کا گھرانہ ہے، ان سے اپنے دل میں بغض رکھتے تھے۔
नासिबी पैदा हुए, नवासिब इनको कहा जाता है, जो आले बैत रसूल से दुश्मनी करते थे। ये राफिदियों के रद्द अमल में, ये राफिदियों के रद्द अमल में अहले सुन्नत ने यहां भी अपने आप को बचा के रखा, कहा ये नासिबी है और नवासिब के तरीके पे चलना ये बिदअत है, ये गुमराही है। ये एक तरीका हुआ। अहले सुन्नत वल जमात इसी रास्ते पे चल रहे हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का दौर, बल्कि उससे पहले आपको मैं बताऊं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा जैसे सहाबा अभी बाहयात थे कि बसरा में तकदीर का इनकार करने वाला फिरका वजूद में आया। तकदीर का इनकार करने वाला, ईमान की बात, हमारे और आपके अकीदे की बात, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की बात, किताब और सुन्नत के अकीदे की बात यह है कि हमें बताया गया है कि अल्लाह ने आसमानों जमीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले सारे लोगों की तकदीर लिख दी है। अब सारी चीज लिखी हुई है, हम अपनी मर्जी और इख्तियार से करते जरूर हैं, लेकिन हमारा इख्तियार अल्लाह की तकदीर से बाहर नहीं है। तकदीर में लिखे जाने की वजह से हम मजबूर महज भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम इख्तियार वाले हैं तो अल्लाह की तकदीर से बाहर भी है, ऐसा भी नहीं है। यह हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। इन्होंने क्या किया, बसरा में माबद जुहनी था, उसने ये बिदअत ईजाद की, कहा तकदीर पहले से लिखी नहीं होती है, बंदा पहले करता है फिर जाकर अल्लाह को मालूम होता है, उसके बाद जाकर लिखा जाता है। मुख्तसर अल्फाज में तकदीर का इनकार किया। बसरा में कदरिया वजूद में आए। अहले सुन्नत वल जमात अपने तरीके पर बाकी हैं, अपने तरीके पर अहले सुन्नत वल जमात बाकी हैं। बसरा में माबद अल जुहनी और उसके नाम लेवा कदरिया के नाम पे गुमराह होते गए। अब इनके रद्द अमल में कुछ लोग तकदीर को साबित करने के नाम पर गुलू कर गए। जबरिया वजूद में। ये जबरिया कौन है? इनका मामला यह था, कहते थे तकदीर पर ईमान का मतलब ये इंसान को कोई इख्तियार नहीं, इंसान मजबूर महज है, कोई इख्तियार नहीं। वो एक बिदअत वजूद में आई। देखें पूरी तारीख ऐसी ही चलती रही है कि एक बिदअत वजूद में आती और उस बिदअत के मुकाबले में दूसरी बिदअत वजूद में आती। कुछ लोग सहाबा के मामले में दुश्मनी पे उतर आए तो दूसरे लोग आले बैत रसूल से दुश्मनी के मामले पे उतर आए। कुछ लोगों ने तकदीर को इनकार किया, कुछ लोगों ने तकदीर को साबित करने में गुलू किया। ऐसे हालात में अब एक नई बिदअत, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ताबीइन में सरदार, अल्लाह के नबी के शागिर्द सहाबा हैं। सहाबा के शागिर्द हजरत हसन बसरी ताबीइन हैं, और ताबीइन में जो सरे फहरिस्त ताबीइन आते हैं उनमें से एक हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का दौर आने तक इस्लामी फुतूहात बहुत ज्यादा फैल गई थी, और ये सूरत हाल थी कि बाहर की दुनिया के जो मुख्तलिफ उलूम और फुनून हैं उनसे लोगों का रिश्ता जुड़ना शुरू हो गया था। वासिल इब्न आता यह हजरत हसन बसरी का शागिर्द था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़कर सुनाया करते थे। प्यारे नबी की अहादीस पढ़कर सुनाया करते थे। इन हदीसों को सुनते सुनाते साथ में यह वासिल इब्न अता, अगर आप इसकी जाकर तारीख पढ़ेंगे, वासिल इब्न अता है, अम्र इब्न उबैद उसका शागिर्द है। इनकी अगर तारीख पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो कुरान और सुन्नत की तालीम देने वाले जो उलमा थे ना, इन उलमा के साथ साथ या इन उलमा से ज्यादा कुछ यहूदियों से भी कुछ बातें सुनने का इनके पास रिवाज था। इनकी तारीख आप जाकर पढ़कर देखें, वो जो दूसरी दुनिया, वो जो फलसफे की बातें जो दूसरी दुनिया से मुंतकिल होकर आलम इस्लाम में आई थी, इन बातों को सुनने का एहतमाम करने लगे। तो अब हुआ ये, उसमें अकली वर्जिश बहुत थी, अकली वर्जिश बहुत थी। जैसे किसी आदमी को मैथ का चस्का लग जाए, रियाजियात का, हिसाबो किताब का चस्का लग जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसे एक मजा आता है। इनको भी उसी किस्म की बीमारी, फलसफे की जो उलटफेर होते हैं, फलसफे की जो लायानी बहसें होती हैं, उनका मजा इस कदर आने लगा था कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि जो कुरान और सुन्नत की बातें पढ़ाते थे उनमें मजा नहीं आता था, उनको मजा नहीं आता था। तो वासिल इब्न अता ने क्या किया, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में एक बड़ा घटिया किस्म का तबसरा किया। उसने कहा, माली अरा कलाम अल हसन ला यखरुजु अन सराविल निसा। उसने कहा क्या बात है, हसन बसरी जब भी बात करते हैं औरतों की सिरवाल ही की बात करते हैं, पजामे ही की बात करते हैं। तंज था, मकसद क्या था उसका,
देखो एक बात आपको मैं समझाता हूं, गरचे थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटूंगा थोड़ा सा, लेकिन समझें आप ये क्या था। आप जानते हैं एक मुसलमान की 5 वक्ता जरूरत क्या है? उसके तहारत के मसाइल, उसकी पाकी नापाकी के मसाइल, उसके वजू के मसाइल, उसके गुस्ल के मसाइल, उसकी नमाज के मसाइल, उसके रोजमर्रा की जरूरत के मसाइल हैं। आलिम वही तो पढ़ाएगा जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत है। आप ईरान की बात करें, तुरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, अमेरिका की बात करें, आपको अपने सुबह शाम के मसाइल मालूम नहीं, इस्तिंजा करने का तरीका मालूम ना हो, तो फिर इसे इल्म नहीं कहते, इसे जनरल नॉलेज कहते हैं। इंसान की जरूरत जनरल नॉलेज नहीं, इंसान की जरूरत इल्म है किताब और सुन्नत का। हजरत हसन बसरी कुरान और सुन्नत की आयत और अहादीस की रोशनी में रोजमर्रा के जो मसाइल हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं, वो पढ़ाया करते थे, एक एक मसला एक एक मसला एक एक मसला करके। अब ये जो फलसफे का चस्का लगा हुआ है, ये जो अकली वर्जिश का चस्का जिसको लगा हुआ है, अब उसे हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि की बातें फीकी लगने लगी। तो वासिल इब्ने अता ने क्या किया? हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का शागिर्द था, लेकिन उनकी मजलिस छोड़कर अपनी एक अलग मजलिस सजा ली, अलग मजलिस बना ली, और यहां से मुअतजिला वजूद में आए, मुअतजिला वजूद में आए यहां से। और इन मुअतजिला ने क्या किया? जहम बिन सफवान एक आदमी था। अब ये जहम बिन सफवान कौन था? इसकी तारीख अगर आप जाकर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसका मामला यह था, यहूदियों की बस्ती में रहते रहते, यहूदियों से बहस मुनाजरा करते करते यहूदियों के उसूल ने अपना लिया और इस्लाम पे आके आजमाना चाहा। एक नई बिदात को ईजाद किया, जहमिया की जो बिदातें, अल्लाह के अस्मा और सिफात सबका इनकार किया, बल्कि जहमिया का जो अकीदा अल्लाह ताला के बारे में, अगर कोई वो अकीदा माने तो अल्लाह के वजूद ही का इनकार लाजिम आए। ऐसी सब बिदातें जब जब वजूद में आती जाती थी, एक जमात थी, एक तबका था जो बराबर सुन्नत पर कायम था। एक जमात थी, एक तबका था जो बराबर सुन्नत पे कायम था। ये खवारिज की बिदत के भी खिलाफ है, शिया की बिदत के भी खिलाफ है, नवासिब की बिदतों के, नासिबियों की बिदत के भी खिलाफ है, कदरिया की बिदत के भी खिलाफ है, जबरिया की बिदत के भी खिलाफ है, मुअतजिला की बिदत के भी खिलाफ है। और आगे चलकर दूसरी सदी के आते आते सूफिया जो हैं, ये सूफिया का भी एक तबका वजूद में आ गया। ये पहले इब्तिदाई दौर में होता क्या था? ज़ुहद और इबादत। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बंदे को अल्लाह की राह में खर्च करने की ज्यादा तौफीक दी, किसी बंदे को अल्लाह ताला ने ऐसी हिम्मत और हौसला दिया वो अल्लाह की राह में जिहाद ही में लगा रहा, और किसी बंदे को अल्लाह ताला ने इबादतों का शौक और उसका चस्का अल्लाह ने दिया, वो इबादतों में ज्यादा रहने लगे। सहाबा में ऐसे जरूर थे कि किसी का नाम जिहाद में बहुत ज्यादा, किसी का इल्म हासिल करने फैलाने में ज्यादा, किसी का इबादतों में बहुत ज्यादा, ये सब कुछ सहाबा में था। लेकिन बाद के दौर में चलते चलते हुआ कि ये इबादतों में लगे हुए जो लोग थे, बाद के दौर में इबादतों में लगते लगते इल्म से दूर होते चले गए। और याद रखो, ये बात याद रखो, जब इबादत करने वाला इल्म से ताल्लुक जोड़ लेता है तो यहीं से बिदातें दाखिल होना शुरू होती हैं। इबादत का इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसीलिए इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा, कहा है बाबुन अल इल्म क़ब्ल अल क़ौली वल अमल। बाब, इल्म का जो मुकाम है वो कौल और अमल से पहले आता है। पहले आदमी को जानना चाहिए, फिर अमल करना चाहिए। आप जितनी इबादत करें, लेकिन आपको इल्म से ताल्लुक रखना चाहिए। मसला यह हुआ कि जब लोग इबादत ही इबादत में निकल गए, इल्म से ताल्लुक कमजोर होने लगा, बिदातें यहां आना शुरू हुई, और रफ्ता रफ्ता वो दौर आया कि सूफिया के नाम पर पहले वो गिरोह आया जो इबादतों में बिदातों को अपनाया करता था, जिनके जिक्र में, तरीके जिक्र में और उनके अपने मामलात में बिदातों ने जगह पाई। और आगे चलकर यह मामला अमली बिदातों से आगे बढ़कर ईमान और अकीदे की बिदातों तक चला गया, यहां तक कि वहदतुल वजूद जैसा अकीदा, वहदतुल वजूद जैसा अकीदा कि हर चीज असल में वजूद खुदा ही का वजूद है, खुदा के अलावा कुछ नहीं, ऐसे अकीदे भी सूफिया के अंदर वजूद में आए। ये सूफिया का अपना ये गिरोह वजूद में आया, जिनको आज आप सिलसिले वाले, बयातों वाले कहते हैं, ये भी वजूद में। इन तमाम हालात में भाइयों, एक जमात थी जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, और सहाबा के बाद सहाबा के ताबीईन जो शागिर्द थे वो थे, और ताबीईन के बाद तबे ताबीईन थे। ये कौन थे? आप यकीन करें, यही वो जमात है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
73 में से एक कहा जो मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर कायम है, कहा यह वही जमात है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक, मेरी उम्मत का एक गिरोह हक पर बराबर कायम रहेगा, यही जमात है। अब ये जमात कौन है? आप तारीख पढ़कर देखो। मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा, इनको आप याद रखेंगे, इस मसले में झगड़े की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह और ऐसे ही दीगर अहले इल्म ने सराहत के साथ कहा है कि यह तबका मुहद्दिसीन का तबका था। ये जो जमात थी ये मुहद्दिसीन की जमात थी। क्या मतलब? कहा कि ये जो अल्लाह के नबी के सहाबा के बाद ताबीन, ताबीन के बाद तबे ताबीन, ये जो सही रास्ते पर कायम जो लोग थे वो मुहद्दिसीन ही की जमात थी, मुहद्दिसीन ही का गिरोह था। अब कुछ लोगों ने इसको गलत अंदाज से समझ लिया। मुहद्दिसीन का मतलब इसमें मुफस्सिरीन दाखिल नहीं, इसमें फुक़हा दाखिल नहीं, इसमें लुगत के माहिरीन दाखिल नहीं, इसमें अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले दाखिल नहीं, इसमें इबादत गुजार लोग दाखिल नहीं, ऐसा नहीं। मुहद्दिसीन से मुराद उलमा की वो जमात है जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को, अहादीस को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद इसी नबी की अहादीस के इल्म के जरिए इन सारी बिदातों का मुकाबला किया। इसीलिए सारे मैंने नाम लिया आपके सामने। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की बात हो, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि की बात हो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की बात हो, सब ने अल्फाज के थोड़े फर्क के साथ साफ लफ्जों में कहा। इमाम अहमद तो यहां तक कहते थे इल्लम यकूनु अस्हाबल हदीस फला अदरी मनहुम, अगर ये जमात, ये गिरोह, ये तबका अगर अहलुल हदीस ना हो, मुझे नहीं पता दुनिया में कोई और इसका हकदार हो भी सकता है। ये है असल में अहले हदीस, ये है मसलके अहले हदीस। यहां कुछ बातें मैं आपको रोक कर बताना चाहूंगा भाइयों। पहली बात तो ये कि इस मसलके हक को मसलके अहले हदीस का नाम देना, ये अहलुल हदीस का नाम देना, ये आज का मसला नहीं है। ये मामला उन अइम्मा के दौर का है, उन मुहद्दिसीन के दौर का, जिन्होंने उस मनहज को अपनी वरासत समझकर अपनाया भी, फैलाया भी। एक दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, आप जाकर देखें खतीब बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने शरफ व असहाबिल हदीस में और ऐसे ही दीगर अहले इल्म ने अपनी किताबों में ये जो अहले इल्म ने कहा है कि ये अहले हदीस ही हो सकते हैं, तो इसके जवाब में इसकी वजाहत करते हुए लिखा है कि इनका ये दावा बिल्कुल बजा है। काज़ी इयाद रहमतुल्लाहि अलैहि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि के इस जुमले की वजाहत करते हुए कहते हैं कि इमाम अहमद कहना यह चाहते हैं कि जो लोग उस अकीदे पे रहेंगे जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा था, जो अहलुल हदीस का अकीदा था, वही लोग असल में हिदायत याफ्ता हैं। ये बात तमाम अहले इल्म ने साफ अल्फाज में कही। इसका मतलब यह हुआ, सबसे पहली बात यह याद रखो, अहलुल हदीस से मुराद वो जमात, वो गिरोह है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा के दीन की उस शक्ल पर कायम रहे जो शक्ल अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में छोड़ी, जिस पर सहाबा बाकी थे, सहाबा के बाद ताबीन बाकी थे, ताबीन के बाद तबे ताबीन बाकी थे, और इसी अंदाज में यह मामला चला आ रहा है। यह पहली बात। दूसरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहूंगा, यह सिर्फ दावा नहीं है, आप तारीखी तौर पर पढ़कर देखो, आपको पता चलेगा। हदीस की जो 6 किताबें मशहूर कुतुब सित्ता के नाम पर हैं, उनको आप पढ़कर देखो। इनकी किताबों में बाकायदा एक एक उन्वान है। कदरिया का बयान, यानी कदरिया की गुमराहियों को बयान किया है। जहमिया का बयान, जहमिया की गुमराहियों को बयान किया है। ईमान के बाब में गुमराह होने वालों का मामला बयान किया है। मनाकिब सहाबा लिखकर शिया पे रद्द किया है। हुब्बे आले बैत के उन्वान कायम करके नासिबियों पे रद्द किया है। अगर आप तारीख पढ़कर देखेंगे, मुहद्दिसीन किराम की किताबें ही इब्तिदाई दौर में वो किताबें मिलेगी जिन्होंने सारी बिदअतों का पर्दा खोला है और साथ में सही रास्ते को वाज़ेह किया। आप तारीख पढ़कर देख लो, ये तारीख की सच्चाई है। इस मसले को याद रखो, ये मामला सिर्फ एक जबानी दावे का नहीं, ये तारीख की बहुत बड़ी सच्चाई है।
مسئلہ ہوتا کہاں ہے؟ لوگ غلط فہمی میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد ہندوستان بر صغیر میں پیدا ہونے والی کوئی جماعت ہے. غلط ہے. یہ اہل الحدیث ہیں، یہ محدثین کرام ہیں جو اس منہج پر قائم رہے جو منہج صحابہ کے زمانے سے چلا آیا. دو